Hello everyone. Today we are going to start preparation for TGT and PGT examinations. So in our first video we are going to discuss TGT, PGT syllabus and some important guidelines and information. So registration start 29 October 2020. As you know, it has started and last date 27 November. So you must register as soon as possible because in last dates it may be server problem. Okay, last date of fee submission 27 November and last date of final submission 30 November. Okay, means you have to register yourself up to 27 November. You have to submit your fee up to 27 November and you have to finally submit your form up to 30 November. So don't wait. Okay, do as soon as possible. And as you know, there are 3 steps. In first step you have to register, and in second step you have to submit your fee, and in last step you have to post your photo and signature, and then finally submit the form. So उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी UPSC-SSB is going to conduct TGT and PGT examinations. Students who are interested with eligibility can apply following the important guidelines that we are going to discuss. Here are some important points. You should register on website, this one, okay? And one application for one subject means if you are applying for a subject you have to fill one application. Okay, आपको एक ही एप्लीकेशन फिल करना है एंड ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन में आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भी नहीं हो सकते हैं. इट इज़ सिंपल. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग मोर देन वन सब्जेक्ट देन यू हैव टू अप्लाई थ्रू डिफरेंट applications, like one application for one subject and next subject next application. Okay, and question paper of subjects related to language, okay, will be in the same language. It means if you are taking English your paper will be in English only. If you are taking Sanskrit your paper will be in Sanskrit only. Urdu only. Hindi subject Hindi only. Okay, and other papers, other subject, paper of other subjects will be in dual language, means English and Hindi. Okay, TGT candidates will be selected on the basis of written exams only. It means there will be no interview. Yes, okay, you must be careful that for TGT examination there will be no interview. So if you qualify the written exams you will be selected. Okay, good opportunity, so you must work hard. And PGT candidates will be selected on the basis of written exams plus interview. Okay, इसमें इंटरव्यू होगा और TGT में इंटरव्यू नहीं होगा. Okay, एज विल बी काउंटेड अप टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. ओके, एप्लीकेशन की लास्ट डेट जब तक है आपकी एज वहाँ तब तक काउंट की जाएगी. एंड one thing important, 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन. ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब कि उसी में कैटेगरी में ही अलग से इनके लिए 10% सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी. एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. येस, देयर विल बी no negative markings, and question will be of multiple types. Types. All questions will be compulsory. You have to attempt all questions. Age limit not less than 21 years on 1st July 2020. 1st जुलाई को आपकी एज 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए.
Okay. Next, female candidates can apply in both male and female categories, means Balak and Balika work, but only either of the two categories. Okay. So as you saw here, your age limit not less than 21 years. Okay. On July 1, 2020. नेक्स्ट वन इज फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकती हैं, यानी बालक एंड बालिका दोनों में वो अप्लाई कर सकती हैं, बट ओनली इधर ऑफ द टू कैटेगरीज। ऐसा नहीं है कि बालक में भी कर दें बालिका में भी कर दें। फीमेल कैंडिडेट्स दे कैन अप्लाई इन बोथ कैटेगरीज मेल एंड फीमेल, बट दे हैव टू अप्लाई इधर वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो या तो वो मेल में करें या तो फीमेल में करें, दोनों में एक साथ नहीं कर सकते हैं। ओके, आई रिपीट, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बालक वर्ग यानी मेल में भी अप्लाई कर सकती हैं एंड बालिका यानी फीमेल में तो अप्लाई कर ही सकती हैं, लेकिन उनको एक में ही करना होगा, चाहे बालक में करें या बालिका में। नेक्स्ट, मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली इन मेल कैटेगरीज, सिर्फ बालक वर्ग में ही मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट कैंडिडेट्स हु इज़ ब्लाइंड एंड इज़ ऑफ म्यूजिक सब्जेक्ट, म्यूज़िक का टीचर हो और वो ब्लाइंड हो तो मेल कैंडिडेट भी फीमेल में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्स ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी विल बी हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट्स। हाँ, येस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स डिफरेंट डेट्स पे होंगे। सो अ कैंडिडेट हु इज़ एलिजिबल फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी कैन अप्लाई फॉर बोथ। अगर आपकी एलिजिबिलिटी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम अलग अलग डेट पे होंगे एंड एग्ज़ाम की डेट जो है वो बाद में अनाउंस की जाएंगी। नो करेक्शन विल बी अलाउड, सो वी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द फॉर्म्स। येस, इम्पॉर्टेंट, आपको अक्सर फॉर्म में करेक्शन के लिए ऑप्शन मिलते हैं ना, बट देयर विल बी नो ऑप्शन ओके फॉर करेक्शन। सो वी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द फॉर्म। भरते समय बहुत ध्यान से आप फॉर्म भरना, क्योंकि आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी वेरी सिंपल, फॉर टीजीटी यू शुड बी बैचलर डिग्री विद रिलेटेड सब्जेक्ट एंड बीएड। आप बीएड भी हों और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एंड फॉर पीजीटी, अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहिए तो मास्टर डिग्री विद रिलेटेड सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर होना चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। लेट्स सी फीस कितनी है। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स दे हैव टू पे 750 फॉर टीजीटी एंड 750 फॉर पीजीटी। ओके, एससी एंड और जो टीजीटी में एससी एंड ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन दोनों की कितनी है 450। ओके, एंड एसटी की 250। आई रिपीट, टीजीटी में जनरल ओबीसी को 750 देना है, शेड्यूल कास्ट एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 450 देना है एंड शेड्यूल ट्राइब्स को 250 देना है। पीजीटी में जनरल ओबीसी को सेम वही 725, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 650 एंड शेड्यूल कास्ट को 450। ओके, एंड शेड्यूल ट्राइब्स को 250। ओके, नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न्स। ओके, there will be 25 questions of 500 marks. Okay, in TGT there will be 125 questions of 500 marks. It means 4 marks for each questions, but 500 marks will be given on the basis of written examination and special weightage. So 465 marks will be given on written exam and 35 marks you will get in weightage. सो वेटेज, स्पेशल वेटेज कैसे मिलेगा आपको? इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, अगर आपने स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट किया है, एमएड है, पीएचडी है या इस तरीके से कोई और स्पेशल क्वालिफिकेशन है आपकी। ओके, सो इट मीन्स फॉर 500 मार्क्स ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 पॉइंट
72 marks. Okay, for PGT there will be 125 questions of 425 marks. मीन्स रिटन एग्जामिनेशन आपका 425 मार्क्स का होगा एंड 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, एंड स्पेशल वेटेज आपके 25 मार्क्स के होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 25 मार्क्स एक साथ स्पेशल वेटेज में, या यहाँ पे जैसा आपने देखा 35 मार्क्स आपको स्पेशल वेटेज में एक साथ दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ होता है, ठीक है। इतने मार्क्स आपको स्पोर्ट्स पे अगर एमएड है इतना, पीएचडी है तो इतना, ठीक है। तो जिसकी जो एलिजिबिलिटी होगी, जिसके पास जो अचीवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको वेटेज दिया जाएगा। बट मैक्सिमम 35 मार्क्स का वेटेज मिल सकता है टीजीटी में, एंड पीजीटी में मैक्सिमम 25 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा उसमें भी आपको पर्सनालिटी टेस्ट होगा, कुछ आपका जनरल अवेयरनेस, कुछ आपकी नॉलेज चेक होगी, कुछ आपका द वे ऑफ एक्सप्रेशन चेक होगा, तो उसके बेसिस पे भी 50 मार्क्स अलग अलग दिए जाएंगे। Okay, so you can see 500 marks will be divided into 425 marks for written, 50 marks for interview and 25 marks as special weightage, ठीक है। Vacancies, so as you can see TGT इंग्लिश में वैकेंसीज आप वी विल डिस्कस ईयर ऑफ इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश की वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे। ये जनरल कैटेगरी में है, ये ओबीसी में, ये एससी और ये एसटी, और टोटल कितने वैकेंसीज हैं। तो टीजीटी इंग्लिश में जो मेल कैटेगरी में है, जनरल की 913, ओबीसी में 445 एंड एससी में 226, एसटी में 3 एंड टोटल 1587 यानी 1587 टोटल बालक वर्ग में वैकेंसी है। एंड बालिका में जनरल में 113, ओबीसी में 46, एससी में 37, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, एंड टोटल 196, ठीक है। तो बालक और बालिका, बालक में 1586 एंड बालिका में 196। सेम पीजीटी में हम देखते हैं, बालक में जनरल में 161, ओबीसी में 77, एससी में 31, एसटी में 0 एंड टोटल 269। ओके, लाइकवाइज बालिका में जनरल में 18, ओबीसी में 9, एससी में 1, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, एंड टोटल बालिका में 28। यानी पीजीटी इंग्लिश में बालक में 269 एंड बालिका में 28। ओके, so we have discussed important points. if you have any problem or query तो आप इन नंबर्स पे जो है बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके नंबर दिए हुए हैं, कांटेक्ट नंबर। ओके, लेट्स डिस्कस सिलेबस ऑफ टीजीटी। सो द सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 sections. One is language, you can simply know as grammar section. तो इसमें unseen passage, your first part will be unseen passage for comprehension. So for checking your understanding, how easily or how correctly you can understand your this ability will be checked during this test. And section B, spelling, punctuation, vocabulary, tense, narration, preposition, uses, transformation, agreement, okay, and parts of speech. So these things you can say of grammar section, ठीक है। Now it begins literature में first forms of literature, okay, and after that ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। एंड ऑथर्स में आपको किनको पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन ग्लैसवर्दी। सो यू कैन से दिस पार्ट इज ऑफ लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। एंड ये जो मैंने रेड कलर किया हुआ है मीन्स टॉपिक्स इन रेड कलर्स आर नॉट इन टीजीटी, ठीक है। बाकी जो ब्लैक में है ये
आपको टीजीटी पीजीटी दोनों में पढ़ना है। जो रेड कलर में मैंने कर दिया वो आपको सिर्फ टीजीटी में पढ़ना है। ओके, सो सिलेबस ऑफ पीजीटी, एज यू saw in TGT, PGT syllabus also has been divided into two sections. First section language, as you can see grammar, and second section literature. So in grammar, unseen passage for comprehension, uses, tense, spelling, punctuation, narration, vocabulary, idioms and phrases. So as you saw, जो रेड कलर से जो मैंने आइटम कर दिया है, जो टॉपिक रेड कलर से कर दिया है वो टीजीटी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट इन लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ द लिटरेचर। ओके, बी फिगर्स ऑफ स्पीच, ये रेड कलर में है, इट मीन्स इसको हमें टीजीटी में नहीं पढ़ना है। सी ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, इन ऑथर्स पीजीटी देयर आर सो मेनी ऑथर्स। सो शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, दीज टू ऑथर्स, ये दोनों आपको टीजीटी में भी पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी के जो ऑथर्स हैं जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम, पीबी शेली, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नोल्ड, एल्फ्रेड टेंसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. एलियट, कमला दास, मुल्क राज आनंद, निज़िम एजेकिल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके वन ऑफ माय फेवरेट राइटर, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, इनको आप सिर्फ पीजीटी में पढ़ेंगे। ओके, ये टीजीटी में नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड the instructions, the guidelines and the syllabus. Okay, and for more information you can read the notification. That's all for today. Thank you.